Welcome back to Maths online class. This is for the class 9th. This is for the class 10th, and we are working for the trigonometric ratios. In my last lecture, we have solved 4 unsolved questions. Right now, again 4 unsolved questions are there with me, and we both will solve. Actually, this is for all you. You have to practice more and more. Here I am your, you can see, I am your guide. I am your motivator. Only what I can do, I can solve some of the questions for you, but there are the varieties of questions which are present in your book. So with the help of this particular question solutions, you have to solve for more questions. Only one time you have to increase your confidence that nothing is there, only some values you have to remember, and you have to go for the some little calculations. Okay, right now see, another question is there with me, that is the question number 5th. Question might be anything. Question might be anything, only you have to fill the values. After that, no problem, only we have to solve the calculation. See here again, 4 cot square 45. 4 cot square 45. What is the value of cot 45? What is the value of cot 45? So remember the value of tan 45. Tan 45 it is 1. So 1 का opposite 1 ही होता है, cot 45 भी हो जाएगा 1. And 1 square I have to fill. 1 square because cot square 45, so 1 square minus sec 60. Sec 60, that is the reciprocal of cos 60. What is the cos 60? Cos 60 is 1 upon 2. If cos 60 is 1 upon 2, तो sec 60 हो जाएगा 2 का opposite 2 और इसका square. This is the value of cos 62 because it is a reciprocal of 1 upon 2. And after that square, so square plus sin 60. Sin 60 is root 3 upon 2. Sin 60 is root 3 upon 2. जो वैल्यू आप रिमेंबर रखोगे उसके लिए तो नो कंफ्यूजन, पावर 2 प्लस cos 90. cos 90 होता है 0. cos 90 होता है 0. 0 का स्क्वायर. वैल्यूज आई हैव पुट अप. राइट नाउ सी द थिंग्स. 4 into 1 square means 4. 1 का स्क्वायर तो 1 ही देगा. माइनस 2 का स्क्वायर अगेन 4. 2 स्क्वायर अगेन 4. प्लस रूट 3 अपॉन 2 का स्क्वायर तो रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3. 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4. Right now see, plus 0 square 0. Right now see this 4 and minus 4, these are going to be cancelled directly, no problem. So I have only 3 upon 4 plus 0. Finally my answer will be 3 upon 4. See the calculation, it is very much easier. See the calculation, it is how much easy it is. Okay, so this is the solution, nothing else. I have filled the values, you can see again and again. Right now go for the next question. Going for the next question, that is the question number 6th. Question number 6th. I am just rubbing it. Question number 6 is saying me, no problem. 5 cos square 60 plus 4 sin square 30. Actually these all are the angles. 60, 30, these all are the angles. Actually I don't have time to put here degree. So you need not to be confused. You can put this, okay? Tan square 45 upon sin square 30, okay, plus cos square 45 degree. Right now see, again we have to go for the same thing, nothing else. 5 cos 60. Cos 60 is what? Cos 60 is what? Cos 30 is root 3 upon 2. Cos 60 is 1 upon 2. So 5 into 1 upon 2 power 2 because it is a square plus 4. Sin 30 is 1 upon 2. Sin 30 is 1 upon 2. So 1 upon 2 is square because it is the square plus tan 45. What is the tan 45? 1. So 1 square. No problem at all. Big upon. Things are coming in the fraction form. Even in the numerator only it is coming in the fraction form. No need to worry at all. Sin square 30 again 1 upon 2 power 2. Plus 1 upon 2, that is the sin 30. What is the cos 45? Cos 45 is 1 upon root 2 power 2. Once you have filled the values, after that only solving it. Look here, 5 into 1 upon 2 का square. 1 upon 2 का square आपको 5 into 1 upon 4 दे देगा. प्लस यहाँ पे मिलेगा 4 into 1 upon 2 का square आपको 1 upon 4 दे देगा. प्लस 1 1 का square 1 ही होगा. यहाँ पे 1 upon 2 का square 1 upon 4 और यहाँ पे 1 अपॉन रूट 2 का होल स्क्वायर देगा 1 अपॉन 2. इज इट राइट? यस. रूट 2 है इसलिए 2 ही आएगा. अब देखो ये 4 से 4 को कैंसिल कर सकते हैं क्या? हाँ.
तो ये दोनों चीजें कैंसल अप हो रही हैं। अब राइट नाउ अगेन आई एम गोइंग टू सॉल्व सी। मैं यहां पे सॉल्व कर देता हूं पहले, लुक हियर, हो ना, 5 into 1/4 means 5/4 plus 1 1 plus 1 1 upon 4 4 cancel, okay, no problem, plus 1 और here 1/4 plus 1/2 1/4 और 1/2 में मैं एलसीएम ले लेता हूं। 4 और 2 का एलसीएम कितना आने वाला है 4। सो अगर 4 है, 4 डिनोमिनेटर में है तो यहाँ पे 1 आएगा, दैट यू कैन अंडरस्टैंड। यहाँ पे 2 है, सो 2 2 जा 4, तो 2 का 1 से इंटू करने के बाद 2 आएगा। अगेन वी आर गोइंग टू सॉल्व, यस, इसका भी एलसीएम लेके इसको पहले ऐड कर लेते हैं। 5/4 प्लस 1 और 1 हो गए 2, 2/1 अपॉन ये हो रहा है बेटा 3/4। इज इट क्लियर? 2 + 1 3/4। इसके बाद इसको इस तरीके से देखते चलो आप, तो ठीक है। इसके बाद मैंने यहाँ सोल्व किया था। इसका भी अपन एलसीएम ले लेंगे, नो प्रॉब्लम एट ऑल। 4 और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा? दिस इज द बिगेस्ट अपॉन 4 और 1 का एलसीएम आ जाएगा 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 का 5, 1 की टेबल में 4 टाइम्स, तो 4 2 जा 8। थिंग्स आर क्लियर टू यू? यस, 3/4 ये हो गया। फिर से इसको सॉल्व किया, 8 और 5 होता है बेटा 13/4। अब मैं ये डाउन वाले को सीधे इंटू करके सॉल्व कर रहा हूं, तो 3/4 का रेसिप्रोकल लेना है, मींस 4/3। 4 से 4 कैंसिल हो जाना है और आंसर आ जाएगा 13/3। आंसर आ जाएगा 13/3। वंस यू कैन चेक इट, तो आप एक बार चेक करके देख लीजिए इसको। ओके, आइदर द थिंग्स आर ओके और नॉट। यस, नथिंग इज फिलिंग ऑफ द वैल्यूज दैट आई हैव टोल्ड यू। पहले सॉल्व कर लिया, वैल्यू फिल करके स्क्वायर कर लिया, ओके। 4 से 4 कैंसिल हो गया, जो भी चीजें आई सेम थिंग आई हैव रिटन हियर। उसके बाद देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर क्रिएट हो चुका है, तो सबको एलसीएम मेथड से ही ऐड कर सकते हैं। सबका कॉमन एलसीएम निकाल लिया मैंने, इन दोनों को सेपरेटली ऐड कर लिया, 2 हो गया। इनका एलसीएम आ रहा है 4, इनका एलसीएम जो भी आया 4 सेपरेटली सॉल्व कर लिया। एंड फाइनली व्हेन वी आर कमिंग फॉर द फाइनल सॉल्यूशन, उस टाइम पर रेसिप्रोकल लेना पड़ता है और डिनोमिनेटर में जो भी फ्रैक्शन हो उसको अपन अपोजिट करके इंटू करते हैं। एंड फाइनली whatever the things that is going to be solved like 4 and 4, and that is the answer. 13/3 is the answer. Again you can solve it. Right now I am going for the next questions. Look here, that is the question number 7. Question number 7 in front of you. Here what we have to do, another category question is there. We have to find the value of x. x की वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करनी है। Look here, sin 2x is equal to sin 60. sin 2x is equal to sin 60 cos 30 minus cos 60 sin 30। ध्यान से देखेंगे, look here, I am rubbing the board, no problem at all, I am solving little faster, no problem, okay। sin 2x, in this particular question we have to find out the value of x. You can see here on my left hand side, so nothing else, this particular side we will compare this 2x with the what kind of the things which are coming here. First only we have to go for solving the right hand side को बस solve करना है। Look here, sin 60 होता है बेटा √3/2, cos 30 भी √3/2 होता है, यस, क्योंकि 30 और 60 जो वैल्यू cos 30 की होती है वो sin में 60 की होती है। Here देखो cos 60 होता है 1/2 और ये वैल्यू sin 30 की भी होती है 1/2। Same thing I have explained you in my starting lecture. Here sin 2x same। अब इंटू करना है, इंटू करना बहुत ही आसान है, √3 और √3 बाहर हो जाएगा, 2 2 जा 4 माइनस 1 1 जा 1, न्यूमरेटर का इंटू डिनोमिनेटर का इंटू 2 2 जा 4। वेरी इजी क्वेश्चन इट इज एक्चुअली। 4 और 4 कॉमन एलसीएम है, एलसीएम भी आ गया 4, सो डायरेक्ट अपन सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, नो नीड टू वरी। और ये मेरे को दे देगा 2/4 है ना, यहाँ पे लिख दिया मैंने, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2 आया। अपने को फाइनली मिल रहा है sin 2x is equal to 1/2। ओनली वी हैव टू, अब क्या करना है, sin 2x is equal to 1/2 अपने को मिल गया। तो ऐसे क्वेश्चन में नथिंग, sin 2x को sin 2x लिखो और किस एंगल के लिए वैल्यू 1/2 होती है, साइन के किस एंगल के लिए वैल्यू 1/2 होती है, तो sin 30 के लिए 1/2 होती है। तो कंपेयर कर लेंगे एंगल को। अब इस तरीके से अपन सोच सकते हैं कि ये साइन से साइन कैंसिल हो गया, तो फाइनली अपने को क्या मिलता है 2x is equal to 30, या कंपेयर कर लिया अपन ने, एंगल शुड बी ऑल्सो इक्वल। अगर देखो इसको इस तरीके से समझते हैं कि sin 2x is equal to sin 30 की वैल्यू होती है, तो ये जो एंगल होंगे वो एंगल को अपन आपस में इक्वल लिख सकते हैं। या तो आप कैंसिल मत करिए, आप यहां से ये समझ सकते हैं कि 2x जो होगा दैट शुड बी इक्वल टू 30 डिग्री।
तो x की वैल्यू आपको मिल जाएगी 30/2 एंड इफ यू आर सॉल्विंग इट सो यू आर गेटिंग 2 1 2 एंड 2 15 टाइम्स 13. So what is the final value? X is equal to 15 degree will be your final answer. Again look here, nothing. I have solved one by one, whatever the values will be there I have filled. After that nothing, small calculations are there that you can understand easily, and after that sin 2x is equal to 1/2. The thing was that for which particular sin value is 1/2, for which particular degree, for which particular acute angle, so it is none other than 30. एंड आफ्टर दैट यहां से साइन या साइन को कैंसिल मान लीजिए, अदरवाइज यू शुड रिमेंबर दैट कि इस पर्टिकुलर केस में क्या होता है, जो दोनों एक्यूट एंगल्स होते हैं दे शुड बी इक्वलाइज, उनको इक्वल कर सकते हैं एंड फ्रॉम देयर ओनली आई कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स. वन मोर क्वेश्चन इज देयर, 8th क्वेश्चन. लुक हियर अगेन, क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8, √3 tan 2x is equal to sin 30 plus sin 45 cos 45 plus 2 sin 90 plus 2 sin 90. Actually this is the question number 8. Question number 8. Right now see, I am rubbing the extra things. Look, concentrate only on the board. ये इसको सेम चलाएंगे अभी तो, √3 tan 2x इसको सेम रहने देंगे. इधर राइट हैंड साइड को पहले सॉल्व करते हैं. लेटर द थिंग्स, लेटर ऑन वी विल ट्रांसफर दिस √3 ऑन द राइट हैंड साइड ऑल्सो. sin 30 होता है बेटा 1/2 प्लस cosine 45 1/√2 होता है, cos 45 भी 1/√2 होता है, सेम वैल्यूज होती है. और 2 इंटू sin 90 वैल्यू होती है 1, sin 91 होती है, sin 00 होता है. ओके, आफ्टर फिलिंग द वैल्यूज यू कैन इंक्रीज योर स्पीड. देखो 1/2 को 1/2 लिखा, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं. ये भी 1/2 हो गया क्योंकि √2 और √2 पेयर बना लेंगे, 2 बाहर हो जाएगा, 2 1 जा होता है 2. अब देखो ये तीनों चीजों को 1/2 प्लस 1/2 प्लस 2/1 एलसीएम मेथड से सॉल्व कर लेते हैं. ओके, कॉमन एलसीएम ले लेते हैं 2 एंड 1, कॉमन डिनोमिनेटर हो जाएगा 2. अकॉर्डिंग टू दैट यहाँ पे क्या है, देखो 2 की टेबल में 2 1 बार आता है, 1 का इंटू होगा तो 1 आएगा. यहाँ पे मैच कर गया तो डायरेक्ट 1 ही आएगा. यहाँ पे 1 की टेबल में 2 टाइम्स तो 2 2 जा 4. और सॉल्व कर लेते हैं तो 4 1 5 1 6/2 और कटा लेते हैं तो 2 1 जा 2 3 जा 6 इक्वल टू 3. आपको ऐसा नहीं करना है. आई हैव द प्रॉब्लम फॉर स्पेस. ओके, आई हैव टू एडजस्ट द स्पेस, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग सो. बट यू हैव टू राइट डाउन वन आफ्टर द अदर, वन आफ्टर द अदर. राइट नाउ सी √3 tan 2x इट इज इक्वल टू हाउ मच आई एम गेटिंग हियर 3. ओके, अब ये √3 को उधर ट्रांसफर करना है, नो प्रॉब्लम. tan 2x इज इक्वल टू 3/√3. अब इसको फिर से मैं एक के बाद एक लिख रहा हूं, बट आप एक के नीचे एक लिखोगे. 3 एक्चुअल में होता क्या है, 3 को क्या मैं √3 इंटू √3 2 टाइम्स लिख सकता हूं. यस, क्योंकि 2 टाइम्स √3 लिखने के बाद ही तो 3 मिलता है. नीचे भी √3 है, नीचे भी √3 है, यहां से इसको कैंसिल कर लिया. फाइनली मेरे को मिल गया tan 2x इज इक्वल टू √3. अब दिमाग लगाना है, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ. √3 फॉर विच पर्टिकुलर tan वैल्यूज, tan की किस एक्यूट एंगल के लिए वैल्यू √3 होती है, तो आपको पता चल गया होगा tan 60 होता है भैया √3. और इधर tan 2x सेम टू सेम. यहां से अपन कंपेयर कर सकते हैं एक्यूट एंगल को. दिस बोथ शुड बी इक्वल टू ईच अदर, मींस 2x इज इक्वल टू 60 और यहां से x की वैल्यू मिलने वाली है, x इज इक्वल टू 60/2 एंड दैट इज इक्वल टू 30. कैंसिल कर दिया तो दैट इज 30, दैट इज द डिग्री, 30 डिग्री. This is all about the solution. Okay, next time I will solve some more question. Thank you so much.